वेलकम टू यूपीएससी एक्सप्रेस सीरीज बाय VicThree IAS। मैं हूं अनमोल शर्मा और इस वीडियो में हम कंप्लीट टॉपिक कवर करेंगे एक ही शॉट में। दिस विल बी अ क्विक एंड फोकस्ड लेसन विदाउट वेस्टिंग टाइम। वीडियो के एंड तक यू विल हैव कंप्लीट कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड एवरीथिंग यू नीड about the topic for the exam. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में you can find the complete notes of the topic and watch this video along with the notes. Also join the Telegram channel of VicThree IAS for schedule, notes and other study material. Subscribe to the channel and follow us on Instagram. तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सर्दर्न किंगडम्स इन मिडीवल इंडिया के बारे में। जब दिल्ली सल्तनत वाज देयर इन द नॉर्थ, देयर वर अ फ्यू किंगडम्स इन डेक्कन और साउथ इंडिया, जैसे कि काकतिया किंगडम, होयसाला किंगडम एंड यादवा किंगडम, जो कि इस पार्ट में था। यू कैन सी ओवर हियर यादवास। ये किंगडम्स साउथ में थे, डेक्कन में थे, एंड इवेंचुअली दे स्टार्टेड एज एन इंडिपेंडेंट किंगडम, बट इवेंचुअली अंडर सर्टेन रूलर्स दिल्ली सल्तनत ने इनको अपना पार्ट बना लिया था। तो दिल्ली सल्तनत ने अब्सॉर्ब कर लिया था इन किंगडम्स को, because of course Delhi Sultanate was very strong, especially when it comes to Yadava we will see कि अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था constantly, because Delhi Sultanate started from Delhi और धीरे धीरे करके उन्होंने एक्सपैंड किया। तो जो ये साउथ के किंगडम्स थे, इन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन पे कंट्रोल किया दिल्ली सल्तनत में डिफरेंट रूलर्स ने। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द काकतिया डायनेस्टी, जो 1163 से 1323 एडी तक रूल किया था। एंड एज वी कैन सी, काकतिया डायनेस्टी प्रेजेंट डे तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा, इसके अराउंड थी। ऑलराइट, and the capital of Kakatiya dynasty was, at first it was Hanumakonda, and then it was shifted to Varangal. That is why Kakatiyas are called Kakatiyas of Varangal. So founder was Prola Raja. Prola Raja was the founder, जिसने की वेस्टर्न चालुक्यास के बारे में हमने पहले पढ़ा है। तो वेस्टर्न चालुक्यास किंगडम से इंडिपेंडेंस लेके he formed Kakatiya dynasty. All right, so he was the founder. So talking about some important rulers of Kakatiya dynasty, Pratap Rudra I, succeeded by Ganpati Deva, then Rudramma Devi, who was the daughter of Ganpati Deva, and Pratap Rudra II, the last king of Kakatiya dynasty, and he was defeated by Ghiyasuddin Tughlaq, who annexed the Kakatiya dynasty into Delhi Sultanate. इनके बारे में brief में we'll study. कुछ points है, more details you can find in the notes, but brief में ही you should know about them. So Pratap Rudra was the first sovereign. इसने पहला किंग था जिसने बोला कि अब जो काकतिया किंगडम है, इट्स फुल्ली बेसिकली फुल्ली इंडिपेंडेंट, अपना खुद से रूल करेगा। और पहले तो वेस्टर्न चालुक्य का फिर भी इन्फ्लुएंस था काकतियास पे। नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज प्रताप रुद्रा हु डिक्लेयर्ड काकतियास टू बी फुल्ली सोवरेन। एंड एक बुक है नीति सारा, दैट वाज रिटन बाय प्रताप रुद्रा। नाउ कमिंग टू गणपति देवा। So Ganpati Deva took the title of Raya Gaj Kesari. So this was the title of Ganpati Deva, and he further expanded the Kakatiya kingdom, and he was the patron of a very famous legendary Telugu poet of that time, who was Tikanna Somyaji. Alright, so these are certain details you need to keep in mind. Now we move on to Rudrama Devi, who was the daughter of Ganpati Deva, and she was the first woman ruler of Kakatiyas. She reorganized administration, she led battles, लड़ाई करी, conquest किया, and एक नयनकारा system था। नयनकारा system, we'll talk about it administration में। So नयनकारा system को strengthen किया, and overall एक बहुत stability दी in terms of peace, prosperity and good administration to the empire। and एक मार्को पोलो
मार्को पोलो एक ट्रैवलर था जो इंडिया आया था, उसने अपनी बुक में प्रेज किया इनफैक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रुद्रमा देवी. ऑलराइट, नाउ वी मूव ऑन टू द लास्ट किंगडम, last king of Kakatiya kingdom, who was Prataprudra II. So Alauddin Khilji for the first time attacked Kakatiyas, but he was defeated, he was repelled. उसको हरा दिया था प्रतापरुद्रा ने, but later, as we discussed, Ghiyasuddin Tughlaq defeated Prataprudra and annexed Kakatiyas into Delhi Sultanate. दिल्ली सल्तनत का पार्ट बना दिया था काकतियास को गियासुद्दीन तुगलक के अंडर. ऑलराइट, so now talking about the administration of Kakatiyas. Kakatiyas kingdom में decentralized system of administration था. That means not everything was under the control, directly under the control of the king. Decentralized system था. That was the नयनकारा system. नयनकारा system के अंदर क्या होता था? नयनकारा system जैसे कि जो किंग था वो जो certain pieces of लैंड को अपने मिलिट्री ऑफिसर्स या मिलिट्री जनरल्स को दे देता था इन लिeu ऑफ सैलरी एंड इन लिeu ऑफ सर्विस. तो सैलरी देने की जगह एक लैंड ग्रांट किंग दे देता था मिलिट्री जनरल को, और उसके बदले मिलिट्री जनरल को सर्विस देनी होती थी, ट्रूप्स और एक आर्मी मेंटेन करके रखनी होती थी, और दूसरा उस पर्टिकुलर लैंड एरिया में जो लैंड उसको दिया गया है उधर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता था. इन रिटर्न जो इस लैंड ग्रांट से टैक्स आ रहा है या फिर लैंड रेवेन्यू आ रहा है, लैंड रेवेन्यू और टैक्स फ्रॉम द लैंड, वो मिलिट्री जनरल को एज अ सैलरी मिल जाता था. सो दिस वाज द होल नयनकारा सिस्टम एंड दैट इज व्हाई ये डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है. मिलिट्री जनरल लॉ एंड ऑर्डर खुद मेंटेन कर रहा है उस एरिया में, ट्रूप्स आर्मी खुद की मेंटेन कर रहा है, एंड इन रिटर्न सर्विस दे रहा है टू द किंग. समटाइम्स ये मिलिट्री जनरल्स जो होते थे ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते थे और किंग के अगेंस्ट ही खड़े हो जाते थे. ऑल राइट, बट इससे क्या है कि किंग को डायरेक्टली हर एक लैंड खुद नहीं एडमिनिस्टर करना पड़ता था, वो मिलिट्री जनरल को दे देता था और सैलरी भी देनी पड़ती थी. और ट्रेड बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, बिकॉज एज यू कुड सी शोर से लगा हुआ किंगडम है, सी कोस्ट है, तो बहुत सारे पोर्ट्स थे, जैसे कि मोटूपल्ली पोर्ट है, मोटूपल्ली पोर्ट फेमस एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ काकतिया, जहाँ से वो साउथ ईस्ट एशिया में ट्रेड करते थे. अदर देन दैट आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बहुत डेवलपमेंट हुई. वी विल स्टडी दिस अंडर आर्ट एंड कल्चर सेक्शन. रुद्रेश्वरा टेम्पल, वेरी फेमस रुद्रेश्वरा टेम्पल, आजकल न्यूज़ में भी है, दैट वाज आल्सो बिल्ट अंडर काकतियाज. रामप्पा टेम्पल, ये सारे काकतियाज में के टाइम पे थे. यू कैन फाइंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट दीज इन द नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. क्या आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, कौन से बुक्स लिखे, क्या टाइटल्स लिए, एवरीथिंग, ऑल द फैक्चुअल डिटेल्स यू कैन फाइंड इन द नोट्स. एंड नाउ वील लुक इनटू द यादवा डायनेस्टी. यादवा डायनेस्टी दैट रूल्ड फ्रॉम 1187 to 1317 AD, and the capital of Yadavas were Devgiri, and the founder was भीलम्मा फाइव. भीलम्मा फाइव जिसने की होयसाला किंगडम, जो होयसाला किंगडम है, उससे अपना ब्रेक अवे करके अपना खुद का एम्पायर बनाया, खुद का किंगडम बनाया, नोन एज द यादवा किंगडम. एंड एज यू कैन सी, महाराष्ट्र, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका, parts of Madhya Pradesh, idhar Yadava dynasty was situated. So talking about the important rulers of Yadava dynasty, Bhilama V, as we studied, was the founder. Then came Simhana II, and then Ramachandra, who was the last ruler of Yadava dynasty. Bhilama V की बात करें तो he took the title of Chakravardin Yadava. Chakravardin Yadav की title was taken by Bhilama V, and as we studied कि होयसाला किंगडम को डिफीट करके ही फॉर्म्ड यादवा किंगडम. ऑलराइट, नाउ कमिंग टू सिम्हाना टू. सिम्हाना टू के बारे में ज़्यादा नहीं है, बट ही पैटर्नाइज्ड टू स्कॉलर्स कॉल्ड सरंगदेवा
एंड चंगदेवा। तो ये दो स्कॉलर्स थे जो कि पैटर्नाइज किए थे सिम्हाना 2 में. समटाइम्स दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली आस्क्ड दैट Sarangdeva was a court poet or in the court of which ruler, right? So you need to have this thing in mind. And now Ramachandra, he was the last ruler. He was defeated by Malik Kafur. Malik Kafur आपको पता होगा जनरल था अलाउद्दीन खिलजी का. So Malik Kafur defeated the Yadavas and made part of Delhi Sultanate. बाकी इनके बारे में थोड़ी आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, जैसे कि गुंडेश्वर टेम्पल वाज क्रिएटेड बाय देम एंड सर्टेन बुक्स वर रिटन अंडर देयर रेन. कुछ बुक्स इनके रूल के अंडर लिखी गई थी. यू कैन रेफर टू द नोट्स फॉर दोज फैक्चुअल डिटेल्स. नाउ we'll move on to the Hoysala dynasty. So now we'll talk about Hoysala dynasty. Hoysala dynasty, as you can see in the map, was centered around the region of Karnataka, parts of Tamil Nadu, and parts of Andhra Pradesh. Capital was Hilabidu. So the capital of Hoysala dynasty was Halebidu and Belur. तो दो कैपिटल्स थी. कैपिटल्स याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज डायरेक्टली मिक्स एंड मैच क्वेश्चन आ जाता है. एंड द फाउंडर ऑफ Hoysala dynasty was Sala, and the important rulers were Vishnuvardhan, Veerabalala II, and Veerabalala III, who was the last ruler of Hoysala dynasty. So talking about Vishnuvardhan, he took the title of Bitti Deva. Bitti Deva and Tala Taladugonda. Talak Talak Dugonda भी टाइटल दिया गया था विष्णुवर्धन ने. एंड ही कन्वर्टेड टू वैष्णविज्म. वैष्णव he converted under the saint Ramanujacharya. The famous Ramanujacharya के अंदर के द्वारा वैष्णविज्म में कन्वर्ट हो गया था विष्णुवर्धन. And there were certain temples like Kirti Narayan temple, Channakeshwara temple, that was all built by Vishnuvardhan. The details you can find in the notes. And now we move on to Veerabalala. Veerabalala के बारे में ज़्यादा नहीं है. He patronized certain Jain poets जैसे कि जन्ना, and एक famous Brahmin poet था in his court called Rudrabhatta. So basically मोस्टली आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में ही होयसालास और ये तीनों जो सर्दर्न किंगडम्स है इसके बारे में जाना जाता है. एंड वीराबलाला 3 वाज द लास्ट रूलर एंड ही डाइड इन द बैटल ऑफ मदुरई. बैटल ऑफ मदुरई में ही डाइड. एंड जो होयसाला किंगडम थी देन became part of Vijayanagara Empire. Vijayanagara Empire we'll study in the upcoming discussion. तो विजयनगरा एम्पायर का पार्ट बन गया था होयसालास. They did not get absorbed into Delhi Sultanate. Right. सबसे important is the temple architecture when we talk about the Hoysala kingdom. The details you can find in the notes, or in detail we'll cover under the art and culture section. And कुछ books जो इनके अंडर लिखी गई थी और उनके authors you can still find in the notes in the description box, mostly factual in nature. So that concludes our discussion of the southern kingdoms during medieval India.